Good morning, students. Today our topic is flexibility. Flexibility is a necessary component of physical fitness. Flexibility is the range of movements of joints. An individual who has proper flexibility can perform his or her work very easily. Such people seems to be attractive. Usually they tends to have good personality. Okay. Types of two types of flexibility: passive flexibility and active flexibility. Passive flexibility to ability to carry out movements together distance with internal help is called passive flexibility. Stretching exercise with the help of a partner. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, जिसमें क्या है कि इसको हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें विदाउट किसी की हेल्प के, मतलब ये किसी हेल्प पे स्ट्रेचिंग की जाती है तो उसको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बोला जाता है. एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ to carry out movements of a longer distance without any internal help. ये किसी विदाउट किसी मतलब हेल्प के ये जो एक्सरसाइज मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो स्ट्रेच किया जाता है वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है. और जो किसी के जो हेल्प लेके पार्टनर की वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब करते हैं तो वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है. ओके. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी टू टाइप्स की होती हैं: स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी. ओके. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. नाउ डेज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इज यूज इन प्लेस ऑफ एजिलिटी. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज mainly depend on the central nervous systems. These abilities can be of various types such as balance ability, rhythm ability, adaptations ability and reactions ability. Okay, these types of abilities are very much helpful in gymnastic and diving. Coordinative abilities can be improved if we carry out correct movements. ओके. तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ जो है एक तालमेल जो होता है आपस में दोनों का, जो है बैलेंसिंग उसको हम बोलते हैं, बैलेंसिंग बोल सकते हैं. बैलेंसिंग जिसमें एबिलिटीज़ होती को इम्प्रूव करती है उसको हम जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बोल सकते हैं. ओके. ये जो मेनली जिम्नास्टिक, डिविंग और जो बैलेंसिंग का जो भी गेम्स होता है, जो भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. क्लियर. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. बिफोर लर्निंग अबाउट द हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल टू नोन द मीनिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस. इन फैक्ट health related physical fitness is important for all the people throughout their life. Its main aim is to achieve the maintain those specific qualities which enhance to the work efficiency of the individual and his her standard of health. It can be done through proper nutrition, regular and proper physical activities, effective stress management, control and prevention of disease, and by getting rid of harmful health related habits such as smoking, drinking, etc. The risk of heart disease, high blood pressures, diabetes, obesity and depressions can be avoided through physical fitness. The various
components of health related physical fitness are stated below: cardiovascular endurance, muscular strength, muscular endurance, flexibility, and body compositions. मसल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है, बॉडी कंपोजिशंस के बारे में हमने पढ़ा पहले भी। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, cardiovascular or cardiorespiratory endurance is the physical ability of an individual to endure in aerobic exercise or prolonged period of time. In other words, it can be said that cardiovascular endurance is ability of the heart, lungs, and blood vessels to supply oxygen and nutrition to be working muscles and ability of these muscles to allow substance exercise. Cardiovascular endurance is important for all of us. Okay, यानी किस प्रकार से हमको फिजिकल फिटनेस के द्वारा, हेल्थ रिलेटेड के द्वारा, कंपोनेंट्स के द्वारा हमको किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस किस प्रकार से हम बूस्ट कर सकते हैं जिससे हमारा लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड हार्ट को हो सके और हेल्थी लाइफ हम अपनी लाइफ जी सकें। तो सेकंड पॉइंट आ रहा है मस्कुलर स्ट्रेंथ. Muscular strength is also an important component of health-related physical fitness. Muscular strength is amount of force the muscles or a group of muscles can exert resistance. In fact, muscle strength means the ability of the muscles of lift weight. The durations of applying muscular strength may be short and vary from 0 to 15 seconds. The muscular strength may be measured in pound and dens. The muscular strength is essential for performing daily routine work easily and smoothly, such as lifting weight and putting it in another place, climbing stairs, etc. Okay. सेकेंड आता है मस्कुलर एंड्योरेंस. मस्कुलर एंड्योरेंस के बारे में बताइए आपको कि एक्सटेंशंस ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स इन एसोसिएटेड विथ मसल्स एबिलिटी टू कंटिन्यू टू परफॉर्म द एक्टिविटी विदाउट फैटिंग. यानी बिना किसी थकान के हम जो डेली जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको मस्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं, जिससे हमको बॉडी को थकान महसूस नहीं हो और हम जो हैं जो भी वर्क कर रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड तक हम टाइम से हम करते रहें, जिससे हमको ये थकान ना हो. वो मस्कुलर एंड्योरेंस ये बूस्ट करता है. ओके. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट इज ऑफ जॉइंट्स. इन अदर वर्ड्स इट्स मीन्स द रेंज ऑफ मोशंस अवेलेबल इन ए जॉइंट. ओके. जो भी जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर से बॉडी के, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड अदर फैक्टर्स जो भी हैं उसको क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है. ओके. गुड पोस्चर्स बनाते हैं बॉडी के अंदर. फ्लेक्सिबल इस बॉडी को स्मूथ रूटीन वर्क को जो है परफॉर्म करने में जो हेल्प करता है. ओके. दूसरा आता है बॉडी कंपोजिशंस. लास्ट पॉइंट है बॉडी कंपोजिशंस. बॉडी कंपोजिशन इज मोर of a major components of health related fitness. Body compositions is the percentage of lean body mass, bones, tendons, muscles, water, ligaments, organs, etc. It compares to body fat. This percentage varies from persons to persons. A fit person has relatively low percentage of body fat. A healthy amount of fat for men is between 15 to 18%. ओके. मेंस और वुमेंस में अलग अलग जो है हमारा फेट जो का परसेंटेज होता है. तो मेन के अंदर जो कितना होता है, बिटवीन 15 to 18%. ओके. वेयर दिस इन वुमेंस इज बिटवीन 20 to 25%. It is important to maintain a healthy percentage of body fat because extra fat
or excess fat in our body can contribute to the development of health problem such as heart disease and diabetes. ओके, सो मतलब बॉडी जो है उसमें जो हमारा जो फैट का परसेंटेज है मैन के अंदर कम होता है, वुमेन्स के अंदर ज़्यादा होता है मैनली। ओके, तो इसमें बताया किस प्रकार से हमारी जो बॉडी है इसमें जो वर्किंग आउट है, वर्क स्टेमिना पावर जो है, मसल्स पावर है, वो पर बॉडी फैट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पुअर बॉडी कंपोजिशंस आर अनडेलेस डेवलपमेंट मसल्स और एक्सेसिव बॉडी फैट। पुअर बॉडी कंपोजिशन हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट और अप्रोसेंस सेल्फ स्टीम्स एटीट्यूड एंड मोरल। ओके, तो ये जो है इसके जो बॉडी कंपोजिशन हमने पढ़े। अब जो हमारा जो ये चैप्टर है पूरा होता है उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 3 के। तो आप लोग कंटिन्यूटी रखो इसमें और जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर करो। मैं जैसे करवा रहा हूँ आपको 1 मार्क्स वाले MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस वो आपको भी करना है। तो चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।